गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट फिजिकली इंस्टॉल ऑन द सिस्टम। दिस एक्स्ट्रा मेमोरी इज एक्चुअली कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि आपकी देखिए, आपकी जो फिजिकल मेमोरी, जो आपकी किसी प्रोग्राम को अगर रन करना होता है तो उसे रैम में आना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन रैम की साइज आपकी फिक्स्ड होती है और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना तो उसको रैम में आना जरूरी है। बिना रैम में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में वर्चुअल मेमोरी आपको एक काइंड ऑफ एल्यूजन प्रोवाइड करती है कि यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेस विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन रैम। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आगे बहुत सारी टेक्निक यूज की जाएगी, बट यहाँ पे बस जो वर्चुअल मेमोरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वर्चुअल मेमोरी इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन विच provide amount of physically installed on the system. This extra memory is called virtual memory. ठीक है, the main visible advantage of this scheme is that program can be larger than physical memory. Virtual memory serves two purposes. First, it allows us to extend the use of physical memory by using disk. Second, it allows us to have protection because of each virtual address is translated to physical address. ये आगे एक प्रोसेस होगा, उसके थ्रू अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में वर्क करता है। फॉलोइंग आर द सिचुएशन व्हेन एंटायर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लोडेड फुली इन मेन मेमोरी. User written error handling routine are used only when an error occurred in the data or computation. Certain option and feature of a program may be used rarely. Many tables are assigned a fixed amount of address space even though only a small amount of table is actually used. The ability to execute a program that is only partially in memory would counter many benefits. Less number of input-output would be needed to load it or swap each user program into memory. A program would no longer be constrained by the amount of physical memory that is available. Each user program could take less physical memory. More program could be run the same time which corresponding increase in CPU utilization and throughput. ठीक है, इन सब का ओवरऑल मतलब बस यही होता है कि जब आपको किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है एंड दैट प्रोसेस इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, उस कंडीशन में आपको सेकेंडरी स्टोरेज से, हार्ड डिस्क से डेटा को मेन मेमोरी में लाना होता है और मेन मेमोरी में बहुत टाइम से पड़े हुए किसी भी डेटा को आपको वापस से स्वैप आउट करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, दिस इज ऑल कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, modern microprocessor intended the general purpose use of memory management unit or MMU. MMU is called memory management unit, is built into the hardware. The MMU job is translate virtual address into physical address. Memory management unit का काम क्या होता है? It converts the virtual address into physical address. Virtual address which is generated by the CPU and physical address which is read by the human beings. Virtual address is commonly implemented by the demand paging. अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है डिमांड पेजिंग का, कि डिमांड पेजिंग क्या होता है। डिमांड पेजिंग इज अ सिस्टम इज क्वाइट सिमिलर टू पेजिंग सिस्टम with swapping where process reside in secondary memory and pages are loaded only on demand. जब पेज की डिमांड होगी उसी कंडीशन में पेज को लोड करेंगे, अदरवाइज एडवांस में किसी भी पेज को एडवांस में लोड नहीं करेंगे। When a context switch occurs, the operating system does not copy any of the old program pages out to the disk or any of the new program's page into the main memory. Instead, it just begin executing the new program after loading the first page and fetch that program pages are they are referenced.
जब भी जिस प्रोसेस की ज़रूरत होगी उस प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में कॉल किया जाएगा। एडवांस में किसी प्रोसेस को कॉल नहीं किया जाएगा। एडवांटेज, हाँ, दूसरी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और क्या आती है, पेज फॉल्ट। while executing a program, if program reference a page which is not available in the main memory because it was swapped out a little ago, the processor treat this invalid memory reference as पेज फॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीपीयू को किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट प्रोसेस इज नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल, नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, तो उस कंडीशन को पेज फॉल्ट कहते हैं। इसका ठीक है, इसको पेज फॉल्ट करती है, जिसको रिकवर करने के लिए बहुत सी एल्गोरिदम आती है। फिलहाल अभी एडवांटेज पढ़ते हैं डिमांड पेजिंग के। लार्ज वर्चुअल मेमोरी, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, देयर इज नो लिमिट ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज हैं number of tables and amount of processor overhead for handling page interrupt are gather greater than the case of simple page management technique। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि डिमांड पेजिंग क्या होती है। अब यहाँ पे एक टर्म आपका आया, वर्चुअल मेमोरी के अंदर में सारी चीजें हो रही हैं, आपका यहाँ पे एक टर्म आता है पेज फॉल्ट। व्हाट इज पेज फॉल्ट? व्हेन CPU requires any process and that process is not present in the main memory, and this situation is called page fault। CPU जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कर रहा है और वो प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में नहीं रहता है, तो उसे आप कहते हो पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट से ओवरकम करने की सेवरल टेक्निक्स होती हैं जो फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसमें फीफो आती है, एलआरयू आती है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट आती है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, एलआरयू मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होता है, और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी एक होती है, जिसमें इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से ये होता है कि कौन से पेज को स्वैप इन करना है और कौन से पेज को स्वैप आउट करना है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोसेस रन हो रहा हमारी मर्जी हुई कि हम उसे स्वैप आउट कर दे रहे हैं। अब ये तो मतलब नहीं हुआ ना, ये तो सही भी नहीं है कि सपोज मेरा मन कर रहा है कि हम P1 प्रोसेस को हटा दें, बट क्यों हटा दें जब वो एक्चुअल में रन हो रहा है, तो उसे हटाने का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए जो ये टेक्निक्स होती है वो ये बताती हैं कि कौन सा पेज हटाना सही है और कौन सा पेज हटाना नहीं सही है। अब इनमें भी आपकी फीफो हो गई, एलआरयू मीन्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब इनमें भी कोई बेस्ट होगी, कोई नहीं उतनी बेस्ट होगी, कोई ज़्यादा ऑप्टिमल होगी, कोई कम ऑप्टिमल होगी। तो ये सब चीज़ें आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी एल्गोरिदम कैसे काम करती है। यहाँ पे तो फिलहाल यहीं तक डिस्कस करते हैं। और फिर इन शॉर्ट बस आप इतना समझ लो कि वर्चुअल मेमोरी इज अ काइंड ऑफ एल्यूजन विच show the user that user can execute any size of program, even memory RAM size is still finite ही होता है, 8 GB 12 GB 16 GB so on। फिर भी आप कितने भी साइज के डेटा को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में आप पेजिंग, डिमांड पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेज फॉल्ट सारी चीजें पढ़ोगे, क्योंकि इन सब कहीं ना कहीं से रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अभी तक इसमें यही है। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ अन्ना बोलो।
ठीक है ठीक है ठीक। हम्म।